بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أكرمين أجمعين أما بعد. الحمدللہ کل ہم تجوید کی تعریف پڑھے، تجوید کا حکم پڑھے، تجوید کا فائدہ پڑھے اور تجوید کے بنیادی اصول پڑھے. ٹھیک ہے، تجوید کے بنیادی اصول جیسا کہ کل آپ کو بتلایا گیا کہ تجوید کے بنیادی اصول پانچ ہیں: مخارج، صفات، وقف، وصل، ابتدا. یہ پانچ جو ہے تجوید کے بنیادی اصول اول کے پڑھے تھے ہم. اور اب اس کے بعد دیکھیے ہمارا جو دوسرا سبق ہے یہ ہے حروف ہجا کا ہے. حروف ہجا کا سبق ہے ہمارا یہ. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے دیکھیے حروف ہجا یہ 29 ہے. یہ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے حروف تہجی کی ضرورت پڑتی. بغیر حروف تہجی کے کوئی بھی زبان نہیں سیکھ سکتے ہم. جیسے کہ انگلش کے الفابیٹس ہے، کتنے انگلش کے الفابیٹس جو ہوتے ہیں ABCD 26 ہے نا جی. جی جی 26 ہے۔ جی جی. اسی طرح جو ہے اردو کے اگر آپ حروف تہجی دیکھیں تو وہ بھی جو ہے تقریباً 36 تک چلے جاتے ہیں. اس طرح حروف تہجی جو عربی میں ہے یہ 28 ہے، یہ 28 ہے یہ. ٹھیک ہے، الف با تا سا الف سے لے کر یا تک یہ تمام حروف جو ہے 29 ہوتے ہیں. مگر اب آگے جب ہم بڑھیں گے تو یہاں پر جو حروف تہجی یہ 29 ہے، یہ جو ہے ایک کم ہو جاتا ہے اس میں. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے. یہ ہم اگر اس کو سنگل پڑھیں گے تو سنگل جب تک ہم پڑھیں گے یہ جو ہے حروف تہجی 29 ہی رہیں گے. لیکن جب اس پہ ہم اعراب لگا دیں گے، زبر زیر پیش کوئی بھی ہم حرکت لگا دیں گے تو ایک کم ہو جاتا ہے اس میں. جیسا کہ الف ہے، الف پر اگر کوئی حرکت لگ گئی یعنی زبر لگ گیا، زیر لگ گیا، پیش لگ گیا یا کوئی اور حرکت لگ گئی تو الف کو الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ حمزہ پڑھا جاتا. یہ الف یہ حمزہ بن جاتا ہو. تو اس وجہ سے یہ کیا ہو جاتے 28 ہو جاتے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے کہ 28 یعنی 29 حروف ہجا کے اچھا دو نام ہے دیکھیے اس کے. یا آپ حروف تہجی بولیے اس کو، یا پھر حروف ہجا بولیے. حروف تہجی بھی اسی کو بولتے، حروف ہجا بھی اسی کو بولتے. دونوں بھی ایک ہی ہے، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے حروف تہجی کیا ہے بولے تو کنفیوز نہ ہونا، حروف ہجا کیا ہے بولے تو کنفیوز نہ ہونا، دونوں بھی ایک ہی ہے. 29 حروف ہجا کے 17 مخارج، 17 صفات اور 5 مواضع ہیں. 29 حروف ہجا کے 17 مخارج. ٹھیک ہے، 17 مخارج ہے، اس کے تمام جو مخارج ہے 17 ہے. پھر اس کے 17 صفات ہے اور 5 اس کے مواضع ہیں. ٹھیک ہے، اب مواضع کیا ہے، مخارج کیا ہے، صفات کیا ہے، یہ تمام چیزوں پہ ہم کو غور کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے حروف تہجی، چونکہ زبان کا آغاز حروف تہجی سے ہی ہو رہا نا، تو سب سے پہلے حروف تہجی کی مشق کریں گے اپن. حروف تہجی اگر اچھا پڑھ لیے تو پھر آگے کے حروف پڑھ سکتے ہیں. حروف تہجی نہیں پڑھے تو پھر آگے کے حروف پڑھنے میں دشواری ہوتی، مشکل ہوتی. ٹھیک ہے، تو پہلے جو ہے حروف تہجی پڑھیں گے اپن. ایک اسکرین آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جی دیکھیں میں. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. جی یہ حروف مفردات کیا ہوتے ہیں پھر؟ حروف مفردات، مفرد بولتے ہیں اس کو. مفرد یعنی ایک. حروف مفردات جو الگ 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 لکھے ہو جاتے ہیں نا، جیسا کہ آپ نورانی قاعدے وغیرہ میں دیکھتے ہیں، حروف مفردات بول کے الگ الگ لکھتے دیکھے. بچوں کو ابتدائیہ کے جی بچوں کو مشق کراتے اس میں. الف سے لے کے یا تک پڑھنا ہے بچے کو تو ایک ساتھ پورے حروف لکھے جا سکتے. مگر ایک ساتھ نہیں لکھ کے کیا کرتے اس کو، الف لکھے پھر اس کے بعد با لکھے، پھر با لکھے پھر الف لکھتے، پھر اس کے بعد با لکھتے. اس طرح حرف کو کیا ہے کھول کے بچے کو جو ہے ایک لائن میں دو ہی حرف لکھتے مگر ڈبل ڈبل ٹبل ٹبل لکھتے ہو. اس طرح وہ حرف بڑھتے بڑھتے ایک ایک لائن میں ایک ایک حرف کا اضافہ کرتے کرتے دو تین صفحے میں اس کو جو ہے تقسیم کر دیتے. تو یہ ہو جاتے مفردات ہو جاتے ہیں. سنگل ایک ایک حرف جو ہوتا نا مفردات. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، اب یہ دیکھیے، آپ کے سامنے اسکرین آ گیا نا، گرین کلر کا جی بورڈ بورڈ نظر آ رہا. دیکھیے یہ بورڈ کی آپ فوٹو لے لیجئے، کیونکہ یہ جو ہے میرے سسٹم میں ہے، لیپ ٹاپ میں چاہیے، میرے فون میں نہیں ہے. تو آپ اس کی ایک فوٹو لے لیجئے.
अब आप देखिए साहब, हुरूफ तहज्जी बोल के यहाँ पे इसकी हेडिंग लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हर हर्फ के ऊपर कोई ना कोई हर्फ लिखा हुआ है, देखिए यानी कोई ना कोई अदद लिखा हुआ है, गिनती लिखी हुई है, देखिए इसके ऊपर उर्दू में लिखी हुई है गिनती। यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ चार है, यहाँ दो है, यहाँ चार है, यहाँ छह है, यहाँ एक है। नहीं, नजर आ रहा ना आपको ये? यानी हर हर्फ जी। पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। क्या मतलब होगा साहब इसका? कोई बोल सकते? ये हर हर्फ पे। उतनी देर में खींच कर पढ़ना चाहिए। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। सीमा गुज़िश्ता आप अटेंड करें क्लास, नहीं? माशाल्लाह। जी हाँ। हाँ हाँ, उसके वास्ते याद है अब। अब देखिए ये जो अदद यहाँ पर लिखा हुआ है, दो, एक, दो, तीन, तीन तो नहीं है इसमें, दो, चार, ये मतलब ये है कि इतने हरकत इसको खींच कर पढ़ना है। अब फिल वक्त हम इसकी मशक कर लेंगे, उसको उतना क्यों खींचे, ये भी एक सवाल हमारे जहन में आएगा। नहीं, वो क्यों खींचे उसका जवाब हम आगे लेंगे इंशाल्लाह क्लास। तो अभी आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आता है कि इसको इतना क्यों खींचा गया। ये तमाम चीजें हमको समझ में आ जाती। चलिए साहब, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए मैं पहले पढ़ता हूँ, आप आहिस्ता पढ़िए इसको, आप माइक खोल के मत पढ़िए। अलिफ, 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 बा, 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 ता, 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 ता। अब इसके बाद वाला हर्फ है सा। सा के लिए जबान की नोक दांतों के बाहर निकाल के पढ़ेंगे। सा, सा। दो हरकत ही खींचेंगे इसको, दो हरकत के बराबर इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। सा, 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 सा। इसके बाद वाला हर्फ है, देखिए जिसके ऊपर जो है चार हरकत लिखे हुए हैं, यानी इसको चार हरकत के बराबर हमको जो है खींच कर पढ़ना है। जीम, 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 जीम। इब्तिदा में जो है हरकत काउंट करने के लिए जो है मुश्किल होती, तो उसके लिए जो है हम अपने फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीम, 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 जी,
जीम। उसके बाद वाला हर्फ है हा। 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 दो हरकत के बराबर इसको खींचेंगे। हा। 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 दो हरकत के बराबर इसको खींचेंगे। फिर इसके बाद वाला हर्फ है ख। इसको जो है जिस तरह हम खकारते ना, उस तरह जो है तारक से बोलना है इसको अंदर से। ख। 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 उसके बाद वाला हर्फ है दाल। इसके ऊपर जो है चार लिखा हुआ है, देखिए। इसको हम चार हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दाल। 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 उसके बाद वाला हर्फ है राल। जबान की नोक दांतों के बाहर निकाल के पढ़ेंगे। राल। 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 ये चार हरकत के बराबर इसको खींचेंगे। चलिए साहब, एक लाइन की हम मशक कर लिए, तो एक लाइन पहले सुन लेंगे, फिर उसके बाद सेकंड लाइन पे आ जाएंगे। चलिए साहब, जो सुनाना चाह रहे हैं पहले हैंड रेस कीजिए। जिसका हैंड रेस पहले आएगा फिर उसको मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। जी, शिमा फातिमा आप पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء
تا تا جیم शाबाश। ہا थोड़ा सख्ती से बोलिए। हाँ। ہا हा। ہا خو जी। دال हम्म। دال बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, अल्लाह और बरकत है। सिदरा, सिदरा है पास में, جی ہاں بول سکتے. पढ़िए। بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم हम्म। ہا जी। خا دال ذال. बहुत अच्छा पढ़े माशाल्लाह। जी मोहम्मद शोएब साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल. नहीं शोएब भाई, आप जो है चार हरकत नहीं खींचे इसको, ठीक है, जाल. ऐसा। जी. ये पढ़िए आप। हा थोड़ा सख्ती से पढ़ना है इसको। हाँ, इस तरह सख्ती से पढ़ना। हा हाँ ऐसा। और हा. सा और जाल, ये एक लाइन पढ़े ना हम, इस दो में जो है जबान की नोक दांतों के बाहर निकाल के पढ़ेंगे। सा, जाल, इस तरह। سر سر زرینہ بیگم پڑھ سکتے ہیں؟ زرینہ بیگم. पहले हैंड रेस करना बेटे, क्लास का उसूल मैं आपको पहले भी बताना, बीच अदर माइक नहीं खोलना, पढ़ने वालों को डिस्टर्ब होता। आप हैंड रेस करना पहले, اوکے. फिर उसके बाद आपको मौका देते, बोला ना मैं। पढ़ लीजिए, आप पढ़ یس. लीजिए। मजहरुद्दीन साहब जरा एक मिनट اوکے. रुक जाइए आप। जी पढ़िए आप। زرینہ بیگم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف जी। با जी। تا जी। ثا फौ नहीं, جیم. ہاں नहीं बेटे सुनिए ہاں पहले इसको। फौ नहीं पढ़ना है ہاں इसको, सा, ہاں. बारीक पढ़ना है इसको। ثا हम्म। جیم जी। ہا हा। خا हा। ہا जी। ہا خا دال बराबर में पढ़िए, زال ये बराबर पढ़िए, चार हरकत खींच के। زال. हम्म। जी ٹھیک ہے نا سر. मजहरुद्दीन साहब आप पढ़िए। अलिफ जी। बा ता सा जीम थोड़ा सा फिर पढ़िए इसको, हा चार हरकत पूरे नहीं है जी इसके। जी चार हरकत पूरे आना, मैं आपको बताना, ऐसा उंगलियों पे काउंट कर लीजिए, आप आ जाता हूँ। जी जीम। जी जी। हा थोड़ा सा सख्ती से बोलिए। खा हाँ। खा जी। हा खा दाल जाल. बराबर, बहुत अच्छे माशाल्लाह, सब अच्छे पढ़े माशाल्लाह। और कोई पढ़ेंगे? चलिए अब इसके बाद की लाइन हम मशक करेंगे, देखिए। ये है रॉ।
थोड़ा साथ में मशक करिए, और हुआ तो जो है मैं कल भी बताया था आपको, नोट्स रोजाना हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा हर्फ पढ़ रहे हैं, कौन सा कायदा पढ़ रहे हैं, हम रोजाना जो है बना लेना। देखिए रोजाना लिखते रहना। जब तक आप क्लास में रहेंगे, कापी और जो है पेन आपके साथ में रहना, कापी कलम दोनों आपके साथ में रहना। आप जो भी जो है कुछ खास बातें हो रही या फिर हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप साथ में तहरीर कर लेते रहना, लिख लेते रहना, उसका फायदा होता है इंशाल्लाह। रॉ, 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 रॉ। उसके बाद है हरफे जा। दांतों की नोक जबान के बाहर नहीं निकालेंगे अब इसमें, जबान अंदर ही रखेंगे। दो दांतों को आपस में मिलाकर इसको अदा करेंगे। हम जो है जब मखारिज पढ़ेंगे, फिर इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ कौन से हर्फ को पढ़ना है। फिर वक्त इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए। जा, जा, जा। ये देखो फंक्शन बस हमारे फिंगर्स को एक्सरसाइज है। अलीफ अलीफ अलीफ। जी शकील अहमद, आपका माइक खुला है, कुछ बोलना है आपको? जा, जा, सीन। ये सीन को जो है चार हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे हम। देखिए सीन, 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 सीन। फिर उसके बाद वाला हर्फ है शीन, 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 शीन। सीन को भी चार हरकत खींचे, शीन को भी चार हरकत खींचे। अब जो है हरफे सौद, इसको भी चार हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है। सौद। हम क्या करे थे, सीन को बारीक पढ़े थे, सौद को क्या करेंगे, मोटा पढ़ेंगे। सौद, 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 सौद। फिर उसके बाद है देखिए हर्फ दौद। इस पे भी चार लिखा हुआ है, मतलब इसको चार हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जो जो पढ़ने वाले हैं, जैसे ही खत्म होते कि आप खुद इशारा दे देना। ठीक है। दौद, दौद। जबान का बायां किनारा बाएं दाढ़ की तरफ लगाकर इसको अदा करेंगे। ضاد، 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 ضاد،
जी साहब सुनाइए, रा से सुनाइए आप, सैयदा साहिबा सुनाइए आप। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रा, जा, सीन, शीन, صاد، ضاد، ضاد۔ माशाल्लाह परफेक्ट। आप इससे पहले भी पढ़े से हैं? जी जी। दरअसल हाँ। मैं बच्चियों के लिए रजिस्टर करवा रही थी, लेकिन अभी बच्चे अवेलेबल नहीं है तो मैंने क्लास ले लिया। बहुत अच्छे माशाल्लाह, और अच्छा पढ़ रहे हैं आप, जबरदस्त। अल्लाह युबारिक फी। जी शीमा फातिमा पढ़िए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनका हो गया हैंड अपना रा, लो कर लीजिए। जी। रा, हम्म। जा, हम्म। सीन, जी। शीन, जी। صاد، जी। ضاد। माशाल्लाह परफेक्ट। सिदरा को दे दीजिए। जी। را، हम्म। ظا، سين، شين، صاد، ضاد، यहाँ पे गलती करे आप, फिर एक मरतबा पढ़िए इसको। صاد، आखिरी में दाल की आवाज जाहिर होना। सौद। صاد، ऐसा, शाबाश। ضاد। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। मोहम्मद शोएब साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रा, जी। जा, सीन, शीन, थोड़ा सा पेशेंस से सॉद। पढ़िए शोएब भाई, शोएब भाई, शोएब भाई, थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़िए। सही अदायगी होती। आप भी यहीं छे, मैं भी यहीं छू। सीन, सुकून से पढ़िए। सीन, फिर से पढ़ूं? हाँ, यहाँ से आ जाइए सीन ठीक के है। पास से। जी। सीन, जी। शीन, सॉद, जबरदस्त। दॉद। आखिरी में दाल जाहिर होना देखिए, स्वाद में भी और दौद में भी। जी। सॉद, दॉद, सौद। ऐसा। सॉद, जी। दॉद। बहुत अच्छे। जी जरीना बेगम पढ़िए आप। را، बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। را، ظا، शीन، शीन، صاد، है बेटा रे, ضاد، इसको फिर से बोलो आप। صاد، ضاد। सौद। सौद को मोटा पढ़ेंगे बोले थे, नहीं, मोटा पढ़ना है इसको। ओके। सौद। صاد، हम्म। ضاد، फिर एक मरतबा बोलिए इसको। ضاد। ठीक है। माशाल्लाह बराबर, अच्छा पढ़े माशाल्लाह, थोड़ी सी मश्क की जरूरत है। और कौन नहीं पढ़े? जी मजहरुद्दीन साहब पढ़िए। را، जा, सीन, 4 हरकत पूरे आना शीन, ही। ये 4 हरकत नहीं है आपके। सी, सीन, शीन, नहीं बाबा, हम कैसा पढ़े इसको? सीन। ऐसा पढ़ना है आप। सीन, जी। शीन, नहीं, आप खींच रहे हैं बराबर यार, फिर आपकी आवाज कम आ रही। शीन। शीन, ऐसा, शाबाश।
صاد बहुत जबरदस्त। दा ज़ा जी जी। नभान, नभान नहीं पढ़ी क्यों? नभान हसन, नभान हसन मसरूफ है शायद। ठीक है, ये देखिए, अ, हम फिर एक मर्तबा दो लाइनों की मैं फिर से मशक करा देता हूँ आपको। इंशाल्लाह कल आगे के दो लाइन इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। 3 मिनट बाकी है हमारी क्लास खत्म होने, और 3 मिनट में ये दोनों लाइन पढ़ना मुमकिन नहीं है। तो ये दो लाइन की जो है मैं मशक करा देता हूँ फिर से, फिर हम दुआ की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या आप रिकॉर्डिंग भी सेंड करते हो? इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी सेंड करेंगे इंशाल्लाह। ओके भाई नभान, माइक नेटवर्क है, ओके ठीक है। एलिफ, साथ में मशक कर लीजिए फिर एक मरतबा। एलिफ, 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 बा, 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 ता, 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 सा, 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 जीम, जीम, जी, जी, हा, 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 खो, 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 दाल, 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 را، را، زا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ये दो लाइन की जो है हम मशक करें, इसको अच्छे से मशक कर लीजिए। कल इंशाल्लाह ये आपसे सुन के फिर अपन आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम को सही सही बात तजवीज कुरान को पढ़ने वाला बना दे। परवरदिगार जिस अंदाज में कुरान करीम को तूने नाजिल किया, परवरदिगार उसी अंदाज में हमको पढ़ने वाला बना दे। इलाहल आलमीन कुरान के तमाम असरार और रुमूज से हम सबको माला माल फरमा, कुरान के बरक़ात से माला माल फरमा। इलाहल आलमीन कुरान के नूर से हमको मुनव्वर फरमा दे, कुरान के नूर से हमारे आंखों को मुनव्वर फरमा दे। इलाहल आलमीन कुरान के सदक़े परवरदिगार हमारे अखलाक को संवार दे। परवरदिगार नेक तौफीक से हमको माला माल फरमा, नेक हिदायत से माला माल फरमा। इलाहल आलमीन मौला परवरदिगार आलम, हम तमाम की जिंदगियों में परवरदिगार खुशहालियाँ अता फरमा। नमाज पंजगाना बपा बंदी अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहल आलमीन